चाहे जितनी मर्जी बड़ी तकलीफें हो, दुख हो, परेशानियां हो, यीशु के आगे कुछ भी नहीं है। शैतान जितना मर्जी अपना काम दिखा ले, लेकिन जब यीशु आता है तो शैतान को भस्म कर देता है। जब यीशु का पैर यहाँ लगता है तो शैतान खुद ब खुद यहाँ से भाग जाता है। तो जितनी मर्जी बुरी बुरी हो, बुरी बलाएं हो, जब यीशु को हम बुलाएंगे यहाँ तो वो यहाँ से चली जाएगी। पाँव में बुरी
तो फिर क्या होगा? जब चले हवा तेरे रूह की बातें हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की बातें हैं शिफा सब रोगी। हो मैं मांगने दर पर आया दे मुझको कलाम की रोटी। कहीं क्या खुदा आज मैं तुझसे मांगने आया हूँ तेरे घर पे, और या खुदा मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता, खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती। या खुदा आज मैं बहुत सारी बरकत लेके यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो फिर देखिए खुदा आपको किस तरह आसमान के दरीचे खोल के बरकत देगा, और आज आप सभी बरकत पाएंगे। मेरे साथ मिलकर कहिए, जब चले हवा तेरे सब रोगी। और जब चले हवा तेरे बातें हैं शिफा सब रोगी। मिलके मैं मांगने दर पे आया दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया दे क्या चाहिए और जब वो देने के लिए यहाँ इस मैदान में मौजूद है, अपने ईमान की आंखों से उसको देखिए और उससे कहिए, ऐ खुदा आज तो मेरी दुआओं को सुन, ऐ खुदा आज मैं यहाँ से बढ़ते लेके जाऊँ। पुकारिए खुदा को, उसकी प्रशंसा करिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए। तो आज आप यहाँ छुएगा और आप महसूस करेंगे कि खुदा का रूह यहाँ झूमच कर रहा है।
اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت محنت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک غول چڑھ رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ان میں داخل ہو۔ بس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ غول جو کوئی 2000 تھا کڑاکے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھے اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور کلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام پڑھے سنے اور اس پر عمل کیے جانے پر خدا ان کی خاص برکت کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے اور جی اٹھنے کے بعد اس وقت جو سب سے اہم کام کلیسیا کے پاس ہے وہ اس کلام کو سمجھنا ہے۔ صلیب پر جان بھی دے دی گئی ہے، کفارہ ہو چکا ہے، وہ جی بھی اٹھا ہے۔ اب صرف کلیسیا کے پاس جو اہم ترین کام ہے وہ کلام کو سمجھنا ہے۔ آپ کے سامنے جس تمثیل سے آج یہ حوالہ پڑھا گیا کہ ایک ایسا شخص جس میں بہت زیادہ بدروہیں تھیں اور وہ جنگلوں پہاڑوں میں بھاگا پھرتا ہے، آپ نے یہ بہت دفعہ سنی ہے، مگر یہ کہانی میری اور آپ کی، یہ صرف ایک بدرو گرفتہ شخص کی کہانی تک محدود نہیں ہے جو پہاڑوں میں بھاگا پھرتا ہے، جو اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا ہے۔ اصل میں ہماری اندرونی باطنی زندگی بھی بالکل اس شخص سے ملتے جلتے ہیں۔ اس شخص کی زندگی کے دو پہلو ہمیں مرکز کی انجیل میں نظر آتے ہیں۔ پہلی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اس کی زندگی پر گناہ کا، بدی کا، بدروہوں کا بہت زیادہ قبضہ ہے، اور یہ بدروہیں اس کو اس کے گھر سے دور لے آئی، اور یہ قبرستانوں میں رہتا ہے، اس کی راہ ٹیڑھی ہے، اور یہ پہاڑوں میں بھاگا پھرتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی حالت ہے۔ یہ ننگا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ بھی ننگے ہو گئے۔ خدا نے سب سے پہلے ان کے لیے کرتے مہیا کیے، اور یہ ننگے پانی کی حالت میں اپنے گھر سے دور ہے، قبرستانوں میں رہتا ہے، اور پہاڑوں میں بھاگا پھرتا ہے اور چلاتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو بیڑیوں سے باندھا، زنجیروں سے باندھا، پر لکھا ہے کوئی اس کو
काबू में ना ला सकता। ये इस शख्स की हालत है और पूरे शहर में ग्रासीनियों के इलाका में इस शख्स का चर्चा था कि ये शख्स किसी के काबू में नहीं है और गुनाह का इस पे बहुत ज्यादा कब्जा है और जंजीरों से, जो कि गुनाह की अलामत है, इससे जकड़ा हुआ है और हम में से बहुत सारे लोग इस शख्स की तरह माजी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। ये तो लोहे की जंजीरों से जकड़ा है, हम माजी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं और हम भी भागे फिरते हैं। इस शख्स की जिंदगी में कोई इत्मीनान, सुकून और कोई ठहराव नजर नहीं आता। इसको बार बार बेड़ियों से, जंजीरों से बांधा गया और ये बार बार उसको तोड़ देता है और इसका जंजीरों को बार बार तोड़ना, अपने आप को पत्थरों से जख्मी करना, ये कौन सी आज़ादी है जो ये शख्स चाहता है। हम में से भी बहुत से लोग आज़ादी के लिए बहुत सारा नुकसान रूहानी, जिस्मानी तौर पर अपना खुद कर लेते हैं और हम एक आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं। और ये शख्स भी कैसी आज़ादी ढूंढ रहा है कि ये अपने आप को खून खार कर लेता है, अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता है, चिल्लाता है, भागता है, अपने घर से दूर है और ये इसको आज़ादी महसूस करता है और किसी भी शख्स के काबू में नहीं है। इसकी जिंदगी में एक अजीब तूफान काटे मार रहा है, इतने तलाकम इसके अंदर हैं और वो सब इसको भगाए गए हैं और ये एक जालिम की तरह हर वक्त अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी एक तमसील का जिक्र मत्ती के इंजील में भी है। वहाँ पे लिखा है 2 लोग थे जो अपने आप को जख्मी करते थे और लूका के इंजील में लिखा है 1 मर्द। ये 3 अनाजील में इस वाकया को दर्ज किया गया है और ये एक ऐसा वाकया है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल मोर्चा है कि ये मसीह यीशु के बाद, शिफा पाने के बाद खिदमत करता नजर आता है। बहुत सारे मोर्चात में खुदावंद यीशु मसीह ने जब किसी को शिफा दी तो वो शिफा के बाद कोई जिक्र नहीं करता, मगर ये एक ऐसा मोर्चा है कि ये शख्स खिदमत करता नजर आता है। और मैं चाहता हूँ कि आज इस शख्स की जो गुनाह से जकड़े हुए, बदरूहों से भरे हुए शख्स की जो हालत है, कहीं आज वो मेरी और आपकी हालत नहीं है। इस शख्स ने जब ये इस हालत में है तो दूर से खुदावंद यीशु मसीह को देखा है और इसने अपने आई कांटेक्ट से यीशु की आंखों में आंखें डाल कर देखा। ये बहुत दफा खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, मगर इस दफा इस बदरू गिरफ्ता शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह की बिल्कुल करीब से आंखों में आंखें डाल दी। एक दफा कश्ती में तूफान आ गया था। उस वक्त पतरस पिता, याकूब था, यूहन्ना था, मगर सबसे एक्सपर्ट कश्ती दान जो था वो याकूब था। खुदावंद यीशु मसीह ने उस समंदर को डांटा, समंदर थम गया, मगर याकूब की आंखों में आंखें डाल के क्या कहा था? ये क्या कहा था याकूब को? तुम्हारा ईमान जाता ना रहे।
याकूब की आंखों में आंखें डाल के कहा था, याकूब सबसे एक्सपर्ट पर्सन, और पतरस का चक्कू चला चला कर उसके बाजू भाग गए थे, पीछे वो रेस्ट करने गया था, और अचानक से तूफान आया और वो सब जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि अब हम जरूर मरेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ है, और जिसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था वो याकूब था, और सबसे एक्सपर्ट था। और बिल्कुल इसी तरह ये बदरू गिरफ्ता शख्स खुदावंद यीशु मसीह के बिल्कुल सामने आ गया। कश्ती से अभी उतर रहे हैं तो इस शख्स का सामना हुआ है, और इसकी जो पहली हालत है वो गुनाह से भरा हुआ, बद अरवाह से भरा हुआ, और अपने आप को जख्मी कर रहा है, बेड़ियों से बांधा गया है, जंजीरों से बांधा गया है, और मगर फिर भी पत्थरों से अपने आप को जख्मी करता है, और अपने घर से दूर है, अपने घर से दूर है, ये अपनों से दूर है, और भागा देता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह को इसने देखा तो बदरवाह ने क्या कहा, और सब बदरुओं ने क्या कहा, ऐ खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या कहा। बदरूहें क्या कह रही है, ऐ खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या कहा। तो सारा काम तो यीशु का डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऊपर से कह रही है मुझे तुझसे क्या कहा, सारा काम डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुदा के लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, खुदा के लोगों को मारती है, फाड़ती है, जख्मी करती है, परेशान करती है। और अब खुदावंद यीशु मसीह से जो सवाल किया है वो सवाल क्या है, ऐ खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या। आपको पता है इससे पहले अबलीस का और खुदावंद यीशु मसीह का 40 रोजों में आपस में एक गुफ्तगू हुई थी। तो उस गुफ्तगू में अबलीस ने कोई झूठ बोला था, उसने जितनी बातें खुदावंद यीशु मसीह से कही वो सारी कलाम में लिखी हुई है। उसने कहा लिखा है तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे तो खुदा के फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। ये तो वाकई लिखा, ये तो वाकई लिखा। मगर गौर करने की बात यह है कि क्या बोल रहा है, ये तो सच है, ये लिखा है। खुदावंद ने उसका जवाब भी कलाम से दिया, मगर सोचना ये है कि कह कौन रहा है। अबलीस कह रहा है, और यहाँ पे बदरूहें कह रही हैं, ऐ खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या कहा, ऐ खुदा ताला के फरजान। और ये जुमला बहुत बड़ा जुमला है, आप इस पे गौर करें। उस वक्त के मस्ती लीडरशिप, उस वक्त के सरदार काहिल, उस वक्त के सारे थियोलॉजियंस इस बात को नहीं जानते थे कि ये खुदा ताला का फरजान है। और बदरूहें कह रही है, बदरूहें कह रही है, उस वक्त के सारे मक्की फरीसी इस बात से आगाह नहीं थे। अबलीस